یہ کہانی ہے ایک محل کی، لیکن ایسا محل جس کی دیواریں خاموش نہیں، جہاں آئینے صرف چہرے نہیں سچ بھی دکھاتے ہیں۔ ایک بادشاہ جسے اقتدار نے اندھا کر دیا، ایک نوکر جس کی خاموشی محبت سے گونجتی تھی، اور وہ لمحہ جب درندے انسان سے بہتر نکلے۔ یہ صرف عدالت کی داستان نہیں، یہ وفاداری، آزمائش اور الہی نشانیاں سمجھنے کی کوشش ہے، جب ایک خطا سچ کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ خوش آمدید اس پراسرار سفر میں جہاں ہر قسط وقت کے پردے سے ایک راز ہٹاتی ہے۔ یہ ہے آئینے کے اس پار کی کہانی۔ کبھی کہیں ایک ویران سرزمین تھی، جہاں نہ بہار تھی نہ امید، صرف سائے تھے، اور ان سایوں کے درمیان ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اس بادشاہ کے محل میں در و دیوار بھی کانپتے تھے، اور دربار کے ستونوں پر خون کی پرانی چھینٹیں آج بھی گواہی دیتی تھیں۔ اس کے 10 درندے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ انسان نہیں، شیاطین کی روح سے بنائے گئے تھے، ہر اس شخص کو نوچ کھاتے جو بادشاہ کے حکم سے ہٹے۔ اور وہاں ایک خادم تھا، خاموش، وفادار، جو دن رات اس سلطنت کے اندھیروں میں روشنی کی تلاش کرتا رہا۔ مگر اس دن اس سے ایک غلطی ہو گئی، اور سلطنت کے قانون میں وفاداری کی کوئی قیمت نہیں، بس سزا ہوتی ہے۔ بادشاہ نے دہاڑ کر کہا، اسے کتوں کے آگے ڈال دو، اور کہانی شروع ہوئی۔ وہ 10 سال جیسے ایک صدی گزر گئی ہو، ایک خادم، ایک دربار، اور ایک دل جو ہر لمحہ بادشاہ کی رضا میں پگھلتا رہا۔ صبح سویرے جب محل کی دیواریں نیند سے جاگتی، وہ خادم جھاڑو لیے خاموشی سے پتھر چمکاتا۔ دوپہر میں جب سورج چھتوں پر چنگھاڑتا، وہ سائے میں بادشاہ کی تلوار کو تیل لگا رہا ہوتا، اور رات کے اندھیرے میں جب سب محل سو جاتا، وہ اس کی دہلیز پر بیٹھا رب سے اپنے بادشاہ کے لیے دعا مانگتا۔ وہ بادشاہ جو اس کی آواز تک نہیں پہچانتا تھا، وہ دربار جو اس کے قدموں کی آہٹ سے بھی غافل تھا، لیکن خادم وفادار تھا۔ اور پھر ایک دن ایک تشت گرایا گیا، بادشاہ کا قیمتی پیالہ ٹوٹ گیا۔ بس ایک لمحہ، ایک آواز، اور پھر ایک فیصلہ، اسے کتوں کے آگے ڈال دو۔ بادشاہ کے منہ سے نکلے الفاظ خادم کے لیے قبر بن گئے۔ سب کچھ لمحوں میں بدل گیا۔ وہ جو 10 سال جھکتا رہا، آج گردن جھکا کر صرف ایک جملہ کہہ پایا، جہاں پناہ، 10 دن کی مہلت، پھر جو حکم ہوگا قبول ہے۔ دربار خاموش ہو گیا، اور بادشاہ نے غرور سے گردن ہلا دی۔ 10 دن بعد تیری وفاداری۔ محل کے در و دیوار ابھی بھی بادشاہ کی آواز سے لرز رہے تھے، اور خادم، وہی خادم جس کے ہاتھوں نے تخت کی صفائی کی تھی، آج خود زمین پر گرایا گیا۔ 10 دن، نہ زیادہ نہ کم، بس اتنا وقت جیسے موت نے پلکیں جھپکنے کے لیے دیا ہو۔ مگر وہ خادم نہ گھبرایا، نہ رویا، نہ کسی سے انصاف کی فریاد کی، نہ بادشاہ کی مہربانی مانگی۔ اس نے اپنا راستہ چنا، اللہ کا راستہ۔ وہ سیدھا گیا محل کے پچھواڑے، جہاں 10 درندوں کے پنجروں کا سایہ دن کے وقت بھی تاریکی بن جاتا تھا۔ وہاں ایک جھونپڑی تھی، کتے پالنے والے کا کمرہ، ایک تھکا ہوا، بدبودار، اکیلا وجود جس سے ہر شخص نفرت کرتا تھا۔ خادم نے اس کے قدم چھوئے اور کہا، مجھے اجازت دو کہ میں ان درندوں کی خدمت کروں۔ رکھوالا چونک گیا، کیا موت سے پہلے پاگل ہو گیا ہے؟ یہ وہ کتے ہیں جن کے سامنے بادشاہ بھی جھانکنے کی جرت نہیں کرتا۔ خادم نے صرف اتنا کہا، میں نے زندگی بھر انسانوں کی خدمت کی، اب رب کی رضا کے لیے ان کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ رکھوالا ہنسا اور اجازت دے دی۔ خادم پہلی بار ان پنجروں کے قریب جا کر بیٹھا۔ 10 آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، دانتوں کی چمک اندھیرے میں قندیل کی مانند تھی۔ مگر خادم نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار چپکے سے کہا، اے میرے رب، تو چاہے تو پتھر بھی نرم ہو سکتے ہیں، کیا یہ دل تیرے امر کے سامنے سخت رہ سکتے ہیں؟ اور پھر اس نے اپنا پہلا دن ان درندوں کے قریب گزارا۔ کا اندھیرا زمین پر اتر چکا تھا، چاند بادلوں میں چھپ رہا تھا، جیسے کسی جرم کا گواہ بننے سے شرما رہا ہو۔ محل کے پچھواڑے میں، جہاں وقت بھی سسکیاں لے کر چلتا ہے، خادم پہلی بار ان پنجروں کے سامنے بیٹھا۔ 10 درندے جن کے جسم پر زنجیروں کے نشان تھے اور آنکھوں میں انسانوں کا خون۔ وہ دھیرے سے بیٹھ گیا، بالکل پنجروں کے درمیان، نہ خوف نہ جنبش، جیسے کوئی عاشق پہلی بار دیوانے کے در پر آئے اور صرف سانس لینا کافی ہو۔ خادم نے جیب سے چند بوٹیاں نکالی اور ایک کتے کے پنجے کے قریب رکھ دی، مگر کتا غرایا زور سے، جیسے پہاڑ پھٹ جائے۔ اس کی آواز نے ساری فضا کو چیر ڈالا، مگر خادم مسکرایا۔ وہ جانتا تھا درندے صرف بھوکے نہیں ہوتے، وہ زخمی بھی ہوتے ہیں، اور ہر زخم بھروسے سے نہیں،
दुआ से भर सकता है। उसने अपना हाथ नहीं खींचा, बल्कि उसी हाथ से जमीन पर कुछ लिखा, सिर्फ उंगली से। किसी ने देखा नहीं, मगर जमीन ने पढ़ लिया, या हलीम। वो रात खामोश गुजरी। ना दरिंदे आगे बढ़े, ना खादिम हटा। बस एक वक्त के बाद एक कुत्ते ने पंजे की जुम्बिश कम की और घर्राहट रुक गई। बस इतना ही, एक खामोश तब्दीली। फजर की अजान शहर से दूर कहीं सुनाई दी और खादिम ने अपने आंसू पूंछकर जमीन पर सजदा किया। वक्त कुछ लम्हों के लिए ठहर गया था और खादिम अब उन दरिंदों के दरमियान सिर्फ मौजूद नहीं था, वो अब उनके बीच सांस बन चुका था। जब महल में लोग सो रहे होते, तब वो उन पंजरों के दरमियान बैठता और निगाह आसमान पर रखता। कुछ ना कहता, बस दिल की आवाज़ को धीमी सरगोशी में रब के हुजूर भेजता। वो दुआ जिसे अल्फाज की ज़रूरत ना थी, वो आंसू जो पुकार बनकर माँ में गुम हो जाते थे। ए मेरे रब, तू शाहों का भी बादशाह है जिनकी गर्दनों में गुरूर की जंजीर हो, और तू उन दिलों का भी वली है जिन्हें सब ने पत्थर समझकर छोड़ दिया हो। अगर ये दरिंदे तेरे इज़्न से बने हैं तो उनके दिल भी तेरे कब्ज़े में होंगे। तू चाहे तो रहमत उनके गर्राने पर गालिब आ जाए। वो दुआएं, वो आंखें और वो खामोशी, सब ने मिलकर एक नई हवा पैदा की। उस रात एक कुत्ता जो हमेशा पंजरों के आखिरी कोने में गर्राता था, आहिस्ता आहिस्ता सामने आया और खादिम के हाथ के करीब बैठ गया। उसके होंठों से गर्राहट नहीं, सिर्फ एक हल्की सी सांस निकली, जैसे वो किसी लम्स को बरसों से तरस रहा हो। खादिम ने हाथ नहीं बढ़ाया, बस सर झुकाया और आहिस्ता से कहा, तू भी इसी रब की मखलूक है जिसने मुझे सब्र दिया। वो पहला लम्स न हुआ न कलाम, मगर वही था पहला पैगाम कि दिल बदलने लगा है। रात का तीसरा पहर था, हर तरफ मौत की सी खामोशी और आसमान पर बादलों की हल्की चादर। खादिम हमेशा की तरह कफ्सों के बीच बैठा था। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था। वो जानता था अब वो आजमाइश के इख्तिताम के करीब है। सांस रोक लेने वाला वक्फा। अचानक वही कुत्ता जो कल रात उसके करीब आया था, फिर उसी जगह आकर बैठ गया। मगर आज उसके आंखों में खालीपन नहीं था। आज उसकी आंखों में तलाश थी, जैसे वो किसी भूले हुए लम्स को याद कर रहा हो। खादिम ने आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाया, न लरस कर, न डर कर, बल्कि यकीन से। धड़कन की आवाज़ मध्यम से तेज़ होती है। लम्हा रुक गया। फिर कुत्ते ने खादिम की हथेली को सूंघा और अपनी पेशानी उस पर रख दी, जैसे बरसों का थकन, जैसे कैद की सदियों का बोझ उस एक लम्स में ख़त्म हो गया हो, रूह में उतर जाने। खादिम ने न हंसा न चीखा, सिर्फ आंखें बंद कर ली और एक धुंधले से अल्फाज में कहा, ए रब, तू जिसे चाहे रहन से नरम कर देता है। उस रात बाकी 9 कुत्ते कफ्सों में खामोश थे, ना कोई गर्राहट, ना चीर फाड़ की वहशत। ऐसा लगा जैसे खादिम की दुआ ने वक्त का पहिया थाम लिया हो। उस लम्हे खादिम तन्हा नहीं था, बल्कि रब की रहमत उसके पहलू में बैठी थी, एक दरिंदे की शक्ल में। सुबह की पहली करन कफ्सों पर पड़ी, रात का लमस अब दिन की गवाही मांग रहा था। महल के पहरीदार जब तफ्सों के करीब आए तो हैरत से उनके कदम रुक गए। वो मंजर जो कभी ना देखा था, आज उनकी आंखों के सामने था। वो कुत्ता जो कल तक इंसान का दुश्मन था, आज खादिम के कदमों में लेटा था। उसकी आंखों में वही सुकून था जो बरसों के बाद माँ की आगोश में लौटने वाले बेटे की आंखों में होता है। पहरीदार भागते हुए महल के अंदर गए। बादशाह को खबर दी गई, एक खादिम ने आपके खूनख्वार कुत्ते को राम कर लिया है। सुल्तान ने हंसी उड़ाई, मगर दिल में एक इज़्तिराब पैदा हुआ। ये कैसे मुमकिन है? वो खुद महल के नीचे आया और कफ्सों के पास जाकर उसने वो मंजर देखा जो उसके गुरूर के लिए जख्म था। दरवाज़ा खुल चुका था, खादिम के लिए नहीं, बल्कि बादशाह के तकब्बुर के लिए। वो पहली बार लरज़ गया। अगर एक गुलाम दरिंदे के दिल को छू सकता है, तो कहीं वो मेरी रैयत के दिल को भी छू ना ले। उसी लम्हे बादशाह ने खादिम को दरबार में बुलवाने का हुक्म दिया, लेकिन नहीं बतौर मुजरिम, बतौर मेहमान। महल का वो दरवाज़ा जो सिर्फ वज़ीरों और अमीरों के लिए खुलता था, आज पहली बार एक कैदी के लिए खुल रहा था। खादिम ने सर उठाया, कफस से बाहर कदम रखा और दिल में गहदर बार सजा हुआ था। सोने की कुर्सी, संगे मरमर का फर्श और खामोश बैठे दरबारी। सुल्तान तख्त पर बराजमान था, मगर उसकी आंखें किसी और को तलाश कर रही थीं। दरवाज़ा खुला और वो खादिम जिसने एक दरिंदे को झुका दिया था, अब इंसानों के दरमियान आ रहा था। हल्की खामोशी, उसके कदमों की चाप ने दरबार को साकित कर दिया,
वो किसी सिपाही की तरह नहीं, किसी दरवेश की तरह चल रहा था। सुल्तान ने गरजदार आवाज में पूछा, तुमने मेरा कुत्ता कैसे राम किया? खादिम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्तगी से कहा, मैंने उसे दुश्मन नहीं, मखलूक समझा। मैंने उसे जंजीर से नहीं, दुआ से बांधा, और मैंने उसकी आंखों में डर नहीं, दर्द तलाश किया। सन्नाटा छा जाता है, पूरा दरबार खामोश हो गया। वजीर आजम ने कान में कहा, यह खतरनाक है, यह गुलाम अल्फाज से इनकलाब ला सकता है। सुल्तान के चेहरे पर कोई रंग बाकी ना रहा, क्योंकि जो अल्फाज उसके दिल को चीर गए थे वो तलवार से भी ना कटे होते। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं, मगर दिल बुलंद। सुल्तान, तुमने मुझे कैद किया, लेकिन मैं आज़ाद रहा, क्योंकि कैद वही होता है जिसका दिल मोहब्बत से खाली हो। सुल्तान ने नज़रें फेर लीं और पहली बार बादशाह को खुद पर शक हुआ। अंधेरी रात थी, चांद धुंध में छुपा हुआ और किले की फसीलों पर खामोशी की चादर तनी हुई थी। सुल्तान ने हुक्म दिया, उसे उस कैद खाने में डालो जहां कोई जिंदा वापस नहीं आया। सिपाही खादिम को ले गए। पथरीली सीढ़ियां, जंग आलूद जंजीरें और नीचे उतरता एक सर्द भयानक सन्नाटा। खादिम खामोश था, न एहतजाज न फरियाद। उसके चेहरे पर वही सुकून जो सिर्फ उनके चेहरों पर होता है जो खौफ से आगे निकल चुके हों। कैद खाने का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। कैद खाना जहाँ न रोशनी आती थी न उम्मीद, सिर्फ अंधेरा और दीवारों से रिश्ती मायूसी। लेकिन उस खादिम ने आंखें बंद की और वो दुआ पढ़ी जो माँ ने सिखाई थी, अल्लाह नूर उस समावात वल अर्द, खुदा जो अंधेरे में रोशनी पैदा करता है। कैद खाने में अचानक हल्की रोशनी का अक्स। कैद खाने की दीवारों पर रोशनी की लकीर सी उभरी और पहली बार वहाँ चिराग रोशन हुआ, बगैर किसी आग के, बगैर किसी सबब के। अगली सुबह जब सिपाही दरवाज़ा खोलने आए तो वो साकित रह गए। खादिम ज़मीन पर सजदे में था, जिंदा पर सुकून और ऐसा चमकता चेहरा जैसे कैद में नहीं, किसी राज में रहा हो। सुल्तान को इत्तला दी गई, बादशाह सलामत, वो खादिम जिंदा है। सुल्तान ने लबों को काटा और आहिस्तगी से कहा, फिर मुझे उससे बात करनी होगी। शायद वो किसी और कैद से आया है जिसे हम समझ नहीं पाए। किले का दरवाज़ा खुला। सुल्तान आया, शाहाना लिबास, तलवार कमर से लटकी हुई और चेहरे पर वही गरूर जो बरसों की फतूहात से पैदा होता है। मगर इस बार कमरे में कोई झुकने वाला ना था, ना डरने वाला, ना झूठ बोलने वाला। सुल्तान के कदमों की आवाज़ पायत खाने में गूंजती है। खादिम साकित बैठा था दीवार के साए में, लेकिन उजाला उसके चेहरे पर। सुल्तान ने पूछा, तू कौन है जिसे कैद मार ना सकी, जिसे अंधेरा डरा ना सका, जिसे मेरे अहकाम झुका ना सके? खादिम ने नज़र उठाई, नरमी थी लेकिन जंजीरों से आज़ाद। उसने कहा, मैं वो हूँ जिसे तू कैद में लाया, मगर खुद कैद से ना निकला। सुल्तान चौंक गया। कैद में? खादिम ने आहिस्ता से कहा, हाँ सुल्तान, तू कैद है, अपने खौफ का, अपने शक का, अपनी ताकत की लग का। सुल्तान खामोश हो गया, एक लम्हे की तवील खामोशी। खादिम ने अपना हाथ सीने पर रखा और कहा, जिस दिन तू अदल करेगा उस दिन तू आज़ाद होगा, तू सच्चा बादशाह होगा। सल्प। और यूं एक खादिम ने वो दरवाज़ा खोला जो सदियों से बंद था, सुल्तान के दिल का दरवाज़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं सच का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है। ये कहानी है एक महल की, लेकिन ऐसा महल जिसकी दीवारें खामोश नहीं, जहां आईने सिर्फ चेहरे नहीं सच भी दिखाते हैं। एक बादशाह जिसे इक़्तिदार ने अंधा कर दिया, एक नौकर जिसकी खामोशी मोहब्बत से गूंजती थी, और वो लम्हा जब दरिंदे इंसान से बेहतर निकले। ये सिर्फ अदालत की दास्तान नहीं, ये वफादारी, आजमाइश और इलाही निशानियां समझने की कोशिश है, जब एक खता सच को बेनकाब कर देती है। खुशामदीद इस पुरअसरार सफ़र में जहां हर किस्त वक्त के पर्दे से एक राज हटाती है। ये है आईने के उस पार की कहानी।